Hello students, how are you all? Okay, so today we are going to start a new unit, and yesterday class I have already completed my first unit, that is business environment. मेरे चैनल पे आपको वो मिल जाएगा, आप उसमें बिजनेस इन्वायरमेंट के सारे टॉपिक्स जितने भी थे, जितनी बार वो क्वेश्चंस आए हैं, आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स, ऑल द कंटेंट्स, एंड कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं वो भी मैंने उस वीडियो के थ्रू कंप्लीट किया है. सो गो थ्रू दिस वीडियो and forward to the other students as well. Okay, so today we start a new unit, that is management, and this topic is very important because in every board like CBSC ICSC boards जितने भी हैं, इसमें कम से कम at least this unit contains 10 to 15 marks questions. So this unit is very important and it really helps to the your next future aims. तो इसको अच्छे से पढ़िएगा. Okay, so now let's start the second unit, that is management. Okay, so the management meaning, nature and importance, we have covered all these things. So in the first part of this management, meaning, according to the modern concept, management is a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. Okay, management का मतलब क्या हुआ कि when it's a process, okay, if you're doing anything, they have a process. Okay, आप कुछ भी करते हैं, if you're like you're preparing for some examination or you're doing some household work, okay, everything needs a management. Okay, तो management क्या है? It's a process of things that you have to achieve an aim, okay, efficiently and effectively. Management may be defined as a process of creating an environment where people working in groups are made to perform efficiently and effectively towards the attainable of organizational goals. Yes, ठीक है. क्या है, अभी बताया कि इट्स क्या है, इट्स ये एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस जहाँ पे लोग क्या करते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल परफॉर्म इफ़िशिएंटली. वो अपने उस वर्क के लिए क्या करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं कि वो अच्छे से उस चीज़ को कर सकें. एंड वाई दे आर फोर्सिंग, बिकॉज दे हैव टू अचीव द एम. Next is the concept of management insists on three terms. Yes, the first is process, second is effectiveness, and third is efficiency. Now what is process? Process means the functions or activities related to concerned concept. Okay. Next is effectiveness. Effectiveness means doing the right task on time, effectively, and achieving goal. I think these words are very common and very familiar, and these meanings are also very clear of all of you. Next is efficiency. Efficiency means completing the task or achieving the goal in the right way with the minimum cost and optimum utilization of resources. अभी तीनों कॉन्सेप्ट है. क्या प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी फंक्शंस कर रहे हो, उसका जो प्रोसेस हो गया, ठीक है, आप कोई भी चीज़ को अचीव कर रहे हो तो वो क्या है, एक प्रोसेस तक होके जाती है. नेक्स्ट इफेक्टिवनेस, जब आप क्या करते हैं, कोई भी टास्क करते हैं, and why you are doing task and why you are giving so much force of doing tasks, because you have to achieve a goal, organization goals. Next is efficiency, means that if you're completing the task or achieving the goal in the right way with the minimum cost and optimum utilization of resources. efficiency का मतलब हो गया how you efficient are, आप एक कम टाइम में कैसे किसी चीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी. ओके, सो मीनिंग जो है वो आपसे हर बार पूछा जाता है एंड इट इज़ ऑफ 2 marks, वी कैन से दैट. ओके, तो मीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा एंड इसको भी अच्छे से पढ़िएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज characteristics. The first is management is goal oriented process. Yes, management deals with achieving organizational and personal goals. Management seeks to harmonize the personal goal with organizational goals. ओके, दैट मीन्स कि मैनेजमेंट क्या है, एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. ठीक है, आप कोई भी आप कोई भी एम को अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए क्या ज़रूरी होता है, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपके पास एक मैनेजमेंट होना चाहिए. यू हैव ए गोल कि आपको इतने टाइम पे इतने लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल के साथ आपको ये चीज़ अचीव करनी है. ठीक है, आपका एक गोल होता है, तो मैनेजमेंट क्या होगा, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज परवेसिव. Management is required in all types of organization and at each level. Yes, either it's top level, middle level, lower level, or we can say that in your daily life everything needs a management.
Management focuses on efficiency and effectiveness in the activities of an organization. Yes, management किस पे focus करती है? How efficient you are and how efficiently your work is effective to your organization. ठीक है, that it shows your it shows in the activities of an organization. Next is management is multidimensional. Yes, management does not mean single activity, but it consisting of management of people, work and operations. Management integrates people in relation to physical resources and financial resources. Yes, management क्या है? We cannot say it's a single activity. Yes, because क्या है? Management का मतलब हो गया है कि that you are not doing activity by yourself. आप क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ठीक है, और उसमें क्या है, लोग उस चीज़ को वर्क असाइन करते हैं, ठीक है, तब उस टास्क को हम कंप्लीट करते हैं. सो इट्स अ मैनेज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल, वर्क एंड ऑपरेशंस. हम हर चीज़ को उसमें इंक्लूड करते हैं. Next is management is a continuous process. Management is a continuous or never ending function. All the functions of management are performed continuously. Yes, like जैसे planning, organizing, staffing. अभी ये आप लोग आके पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के फंक्शंस होते कैसे हैं, कैसे हम ये जो सारी चीज़ें how we manage in organizations and business organizations. तो ये क्या है? इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता रहता है, ये क्या है, ये कभी रुकता नहीं है. मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. यस, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये ग्रुप एक्टिविटी क्यों है. मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल वेयर ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स आर इन्वॉल्व्ड इन वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव. ओके, सो मैनेजमेंट इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल. यस, एंड ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें क्या है कि ग्रुप एक्टिविटी क्यों है? यस, क्योंकि हम लोग इसमें क्या है, मिल के काम करते हैं. हम इसमें वी असाइन एवरी पीपल ऑफ डिफरेंट वर्क्स, तो जिससे क्या हो कि वो जो हमारे कॉमन ऑब्जेक्टिव है उसको हम अचीव कर सकें. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट्स फंक्शंस चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम depending upon the conditions of the business, that is changes in economic, social, political, technological and human conditions. Management adjusts itself to atmosphere which is always dynamic. Yes, तो क्या है कि जो बोला गया है आपको कि मैनेजमेंट क्या है, इट्स ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या है कि दे मेक चेंजेस इन द गोल्स, जो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गोल्स होते हैं, अदर एक्टिविटीज़. ओके, दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट. ठीक है, जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट आप लोग ने पढ़ा होगा. Okay, so the internal environment like social, economical, technical, political, he said they had great influence over the management. Okay, next is intangible. Management function cannot be physically seen, but its presence can be felt. Yes, all of you know very well what is intangible. You have already learned in class 11th intangible assets as well. Okay, so the management requires application of mind involving foresight, intelligent, imagination and sound judgment. क्योंकि intangible चीज़ क्या होती है, that it cannot be seen, ये आपको दिखाई नहीं देती है, बट आप इसका जो काम करते हो, जो मैनेज, जिस तरीके से मैनेज करके आप उस चीज़ को अचीव करते हो, आपको वो सक्सेस दिखाई देती है, तो दैट इज़ कॉल्ड इंटेंजिबल. तो ये सारी चीज़ें आपको कब शो होंगी? व्हेन यू शो योर माइंड, ओके, योर इंटेलिजेंस, ठीक है, आपकी इमेजिनेशन, हाउ वर्सटाइल यू आर, हाउ इनोवेटिव यू आर. तो ये सारी चीज़ें क्या, इट शोज द हाउ सक्सेसफुली यू मैनेज योर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Okay, so the characteristics are done. Now come to the objectives of management. Objectives are the goals or ends towards which the activities of organization are directed. The managerial objectives of an organization can be classified into three major categories. And yes, जो अभी हमने characteristics डिस्कस करी, उसमें जो है आप लोग जो है एटलीस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से पढ़िएगा. Okay, otherwise these all characteristics are very important. Sometimes the questions are comes like management is a goal oriented process, how, explain. Okay, so you have to explain ki why we call that management is a goal oriented process. In the same characteristics the questions are coming like explain and why. The management is multidimensional, why. Okay, so these types of questions are coming 2 marks or 3 marks, mainly 1 or 2 marks. Okay, and अगर characteristics आती हैं तो it comes in 4 marks, so you can write any 4.
Okay. So the first is organizational objectives. The basic purpose of every organization is to survive and exist in the competitive market. Yes. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव क्या होता है कि उसका जो भी मार्केट है, प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो एक लॉन्ग टाइम के लिए उसमें एग्जिस्ट करे. मान लीजिए अगर आप कोई प्रोडक्ट निकालते हैं और वो मार्केट में कुछ दिन चलता है एंड फिर उसके बाद क्या होगा, पीपल आर लाइक फॉरगेट योर प्रोडक्ट. तो क्या हो गया, ये कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया जो कि क्या चलता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Next is earning adequate amount of profit. Profit is essential for survival, growth and expansion of business. Yes. So yes, अगर हम हमारे ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, प्रॉफिट. हम ये सब क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू अर्न प्रॉफिट. ओके, एंड इट इज़ असेंशियल फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. हमें जब प्रॉफिट आएगा तभी हम अपने उस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं. Business organization must grow and expand their activities. The success of organization is measured by the growth, and the growth is measured by the terms of sales, number of branches, number of products, etc. Yes. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या, दे ऑल आर कनेक्टेड विद द ईच अदर. ठीक है, हमें प्रॉफिट होगा, हम एक्सपेंड करेंगे तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा. ग्रोथ रेट कैसे बढ़ेगा, वी कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ सेल्स. जब उसमें सेल्स बढ़ेगी, हमारी ब्रांचेस बढ़ेंगी. जैसा हम लोग भी देखते हैं कि जैसे बिग बाज़ार है तो उसके क्या है, जगह जगह पे ब्रांचेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या पता चलता है कि इसका मार्केट कैसा है. इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव वर्ड एंड वेरी एक्सपेंडेबल. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूज अवेलेबल फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज. यानी कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, आप उसको कितने अच्छे से उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी कैपेबिलिटी को चेक किया जाता है. इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और ए न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन. आप किसी भी प्रोडक्ट को कितने इनोवेटिवली, कितने नई तरीके से उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, उसकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं. दीज ऑल आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. Next is social objectives. Social objectives of the organizations deal with the commitment of the organization towards the society. Okay, यानी कि वो objectives जो आपके लिए क्या है, that you have represent towards the society. आप उनके लिए क्या करते हैं. ठीक है, अपने प्रोजेक्ट आपका कोई भी प्रोडक्ट आता है, योर फर्स्ट कंसर्न इज दैट यू सेटिस्फाई योर कस्टमर्स बाय योर प्रोडक्ट. आप उनको अच्छी सर्विसेज देते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट इज जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. आप क्या करते हो, आपने ऐसा नहीं किया कि भाई द पर्सन हु इज़ अबव 18 एंड बिलो 25, तो आप उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो. नहीं, you give an opportunity of every age of people. Okay, next is organizing educational, health and vocational training programs. Okay, for a successful business you organized your trainings for your every generation of employment. Okay, participating actively in social service projects of government and NGOs. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी बड़ा फंक्शंस होते हैं या प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें क्या करता है कि प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर बनते हैं. तो इट्स लाइक अ हेल्प ऑफ गवर्नमेंट एंड द NGOs कि वो उनको क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं, उनको थोड़ी हेल्प करते हैं फाइनेंशियली. नेक्स्ट इज यूजिंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन. यस, लाइक जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि बैन ऑफ पॉलीथीन बैग्स, वी यूज़ पेपर बैग्स. तो ये सब क्या होगा, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स हो गया कि हम लोग मार्केट में जाते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग अपने कैरी बैग्स को खुद लेके आइए बिकॉज दे डोंट हैव पॉलीथीन बैग्स. तो ये क्या हो गया, दैट यू गिव योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इन्वायरमेंट. नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. यस, वीकर सेक्शंस में जो क्या है, BPL में आते हैं, या जो लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं लगती है या बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम रीजंस की कुछ प्रॉब्लम होती है. तो ये क्या हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव्स कि आप ऐसे लोग को भी क्या करें, अपनी कंपनी में उनको हेल्प करें जिससे वो भी क्या हो, अपनी डेली लाइफ को चला सकें. नेक्स्ट इज इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि बीइंग एन इंडिविजुअल पर्सन, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. The first is maximum prosperity for employees, providing competitive salary, personal growth and development. Yes, these all are bases on your efficiency. ठीक है, next is peer recognition, self respect, respect for colleague to fulfill social need. Okay, अगर ऐसा
अगर आप लोग रिस्पेक्ट नहीं करोगे किसी के डिसीजंस की या अपने एल्डर्स की या जो यंगर्स होते हैं, तो क्या होगा, ये अपने कलीग्स होते हैं, तो दे क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. Next is providing good and healthy working conditions for safety for employees, better standard of life. Yes, and it is very important that कि अगर आपकी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं एंड अगर आप उनको कंफर्टेबल फील कराते हो, ठीक है, आप उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हो, तो वो भी क्या करेंगे, दे ऑल्सो गिव ए कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल इन अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. Management helps in achieving group goal. Management tries to integrate the objective of individuals along with the organizational goals. ठीक है, तो क्या हो गया अच्छा ओके, एंड दीज ऑब्जेक्टिव्स दैट वी हैव डिस्कस्ड, जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं बेटा, इसमें क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, ये सब जो है आपके, ये भी जो है 3 to 4 मार्क्स में आते हैं. ठीक है, तो कभी ऐसे आ जाता है कि एक्सप्लेन द सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ओके, तो इसको भी लर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैंने आपको बताया है कि ये जो नोट्स हैं आपके, कि ये सब जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, या जो जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, मैंने वो सारे नोट्स, एंड हाउ मच यू हैव, बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि हम किसी भी आंसर में कितना लिखें. ओके, तो ये सारे जो भी आपके डाउट्स हैं वो आपको इस वीडियो के थ्रू सब आपके डाउट क्लियर्स हो जाएंगे. एंड स्टिल आपको कोई भी, इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट भी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी. एंड येस, प्लीज़ फॉरवर्ड दिस टू अदर स्टूडेंट्स एज वेल, सो दैट उनको भी इस चीज़ पे हेल्प हो सके. ओके ओके, सो वी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. ओके, so the first is management helps in achieving group goal. okay, group goal means कि आपको क्या, मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपको कोई वर्क असाइन किया गया है एंड यू वर्कड एज अ ग्रुप एक्टिविटी, इट्स वी कैन से दैट. ओके, तो इट इंटीग्रेट्स ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल्स अलॉन्ग विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. बिकॉज ये क्या है, मैनेजमेंट जो है वो क्या कहते हैं, इट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स in the common direction of achieving organizational goals. Okay, next is management increases efficiency. Management utilizes available resources effectively and according to plans. This results in elimination of all types of wastages and reduction in cost. मतलब क्या हुआ इसका, that management क्या करता है, ठीक है, it utilizes जो भी आपके पास resources होते हैं, ठीक है, उनको इफेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द प्लान, क्योंकि हर एक मैनेजमेंट, हर एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए यू हैव अ प्लान, आपके पास प्लान होना चाहिए. आप उस प्लान को जब गो थ्रू करते हैं, उसके थ्रू उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, यू यूटिलाइजेज योर अवेलेबल रिसोर्सेज. ओके, दिस रिजल्ट्स इन एलिमिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस एंड रिडक्शन इन कॉस्ट. ठीक है, ये क्या दिखाता है कि इससे क्या होगा, अगर आप उस प्लान के थ्रू चलेंगे तो आपको जो भी लगता है कि ये चीज़ जो है आपके प्लान के लिए सही नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो बेस्ट है आप उसको रखोगे और जो नहीं है उसको आप एलिमिनेट करते जाओगे. ठीक है, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन. ओके, management motivates employees to adopt changes willingly by convincing them that change is not only beneficial for organization but it improves the employees work also in the competitive world. Okay, सो क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि द मैनेजमेंट क्या करता है, वो मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज़ को कि दे हैव टू वर्क इन whatsoever the circumstances is. Okay, so they willingly, they convincing them. Okay, एंड फर्दर इज़ नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी नहीं है, बट वो क्या करते हैं आगे अपनी उनके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, जब वो एम्प्लॉयज़ क्या है, क्योंकि वो इफ़ दे आर मेकिंग अ प्रोडक्ट तो वो एक वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट को बनाते हैं. ओके, तो वो क्या है, फॉर द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को उस तरीके से पूरा बनाते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि वो क्या कर सके, उसमें अपने आप को प्रेजेंट कर सकें. Management helps in personal objective. Management harmonizes personal objectives with organizational objectives by developing team spirit, cooperation, and commitment. Okay, so this is very heavy words like team spirit होनी चाहिए. ओके, कॉपरेशन होना चाहिए एंड कमिटमेंट होनी चाहिए. अभी हम लोग ने पढ़ा कि क्यों ऐसा होना चाहिए, बिकॉज कि अगर आपकी
जो कंपनी में है, अगर हेल्दी रिलेशंस नहीं होंगे, टीम स्पिरिट नहीं होगा, तो क्या होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते. एंड बीइंग एन एफिशिएंट मैनेजर इज द वन हु ब्रिंग्स मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉयज़. और एक मैनेजर का भी एक ही क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को कंफर्टेबल करें और अपनी टीम स्पिरिट को वो, अपने कॉपरेशन को वो अच्छा से अच्छा बना सकें. Okay, next is employment opportunity, providing better quality goods and increases the standard of living. Okay, next is nature of management. Some authors are considering management is going towards the paths of profession. To conclude whether management is science, art or profession, we must understand the meaning and features and compare them. Yes, नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या कहा गया है कि मैनेजमेंट क्या है, एज अ साइंस है, एज एन आर्ट है और अ प्रोफेशन. तो ये क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर बार आता है, मैनेजमेंट इज़ अ साइंस, वाई, मैनेजमेंट इज़ इन साइंस और एन आर्ट, वाई. तो ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड every time that it comes. Okay, now let's discuss. The science can be defined as a systematic and organized body of knowledge based on logically observed findings, facts and events. Okay, तो ये क्या हो गया, साइंस क्या बताती है कि ये, आप एवरीबडी नो व्हाट इज साइंस, ठीक है, इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज, इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज जो किस पे बेस्ड होती है, ऑब्जर्वेशंस पे, फैक्ट्स पे, इवेंट्स पे, जो हम लोग जो साइंटिस्ट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस. Now, what are the features? Existence of systemized body of knowledge. Okay. Next is management use scientific methods of observation. Third is principle based on experiments, and fourth is universal validity of principles. Okay. The first is existence body of knowledge. That means कि science क्या है, that it organized and systematic study material we can say which is available to acquire the knowledge of science. Okay. Or we can say that science in management also there is a availability of systematic and organized study material. Okay, so the systematic body of knowledge, we can say that science is present in management. Okay, the next is management use scientific methods of observation. Okay, so how these scientific principles use scientific methods of observations. Scientific principles actually are developed through the observations, like tested through the repeated experiments. वो अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीटेडली क्या करते हैं, उनको एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है. एंड दिस मैनेजमेंट एक्चुअली डील विद द, किससे डील करते हैं, दे डील विद द ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर विच कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड. जैसा हो, मतलब जैसा वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं ऐसा हो, ये ज़रूरी नहीं है. तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि दिस पॉइंट हैज़ कंटेनिंग द पार्शली प्रेजेंट. ओके, इसमें कुछ पार्शली प्रेजेंट है साइंस, पूरी तरीके से हम नहीं बोल सकते कि दैट इट एक्चुअली यूज साइंटिफिक मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, ओके, द थर्ड इज ऑल्सो सेम, द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल. ओके, दैट जितने भी हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल एंड वैलिडिटी. ओके, दीज प्रिंसिपल नॉट लाइक एग्जैक्ट साइंस की तरह नहीं होते हैं. ओके, एंड दीज प्रिंसिपल्स आर लाइक एप्लीकेशन विच इज़ नॉट यूज इन यूनिवर्सल. ओके, सो दिस इज, वी कैन से दैट इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सो ऑल दीज ऑफ दिस फीचर्स वी हैव डिस्कस्ड. ओके, तो क्या इसमें कंक्लूजन क्या निकला, दैट ऑन कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ साइंस विद मैनेजमेंट वी फाइंड सम of features is present in management where some are not. So management cannot be considered pure or exact science, but we can call it as an inexact science or social science. Next is management as an art. Art can be defined as systematic body of knowledge which requires skill, creativity and practice to get perfection. So all of you know, अभी हमने मीनिंग पढ़ी साइंस की, दैट इज इट इज़ बेस्ड ऑन इवेंट्स, फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशंस. आर्ट में क्या होता है, दैट यू रिक्वायर स्किल, हाउ क्रिएटिव यू आर, हाउ परफेक्ट यू आर इन योर स्किल्स. ओके, तो फर्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज मीन्स कि किसमें क्या हो गया कि यू हैव लाइक there is systematic and organized study material that you acquire theoretical knowledge by of your art. ओके, जैसे क्या होता है कि आपके पास यू हैव एन नंबर ऑफ बुक्स ऑफ म्यूज़िक, या हम ये कह सकते हैं कि जैसे मेडिकल लाइन होती है, ठीक है, मेडिकल प्रोफेशन में हर किसी को सब एक इक्वली पढ़ाया जाता है,
ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि क्या हर जितने भी लोग पढ़ते हैं मेडिकल, क्या वो सब लोग एक ही चीज़ में परफेक्शन होता है सबका? नहीं। किसी का मेडिकल, किसी का डेंटल में होगा, किसी का सर्जन में होगा। तो ये क्या हो गया कि आपके पास स्किल्स तो है सारी, लेकिन आपकी स्किल कहाँ पे यूज़ होनी है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द थ्योरेटिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द थ्योरेटिकल नॉलेज। ओके, नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इज पर्सनलाइज्ड. Okay, that we can say that in the field of art, okay, the theoretical knowledge is not enough. Okay, that every artist must have personal skills and creativity to apply that knowledge. Okay, यानी कि हर किसी के पास क्या एक अपनी एक अलग स्किल्स है, अलग क्वालिटी है, ठीक है, और उसको कहाँ पे यूज़ करना है दे नो वेरी वेल, ठीक है, एंड विच मेक्स देम डिफरेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट के लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि हर एक एम्प्लॉय की एक अपनी अलग एफिशिएंसी होती है, ठीक है। हो सकता हो कोई किसी में अच्छा हो, कोई किसी में अच्छा होगा, तो ये क्या होगा, ये उनके अंदर की एक स्किल्स हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस फीचर आर्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. नेक्स्ट इज based on practice and creativity. Yes, because the artist actually requires a regular practice of art to become a more fine and perfect artist. Okay, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मे बी यू लूज देयर परफेक्शन. मैनेजमेंट भी ये क्या कहता है कि अगर आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है और आप उसको अगर यूज़ नहीं करोगे, अपने उस प्रोडक्ट में नहीं लाओगे, तो क्या होगा, वी कैन कंसिडर इट एज अ फूल. Now, so what is conclusion, that on comparing the features of art with management, we find all the features are present in the management. So we can call management as an art of getting things done by the others. Okay, so the next management both science and art, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. आई थिंक दिस इज़ वेरी मच क्लियर. एंड जो भी अभी हमने डिस्कस किया, लाइक मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट, ठीक है, ये उसका एक पार्ट है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज प्रोफेशन. Profession can be defined as an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. आप लोग ने बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन में क्लास 11th में डिफरेंसेस पढ़े होंगे, ठीक है. तो उसमें प्रोफेशन आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज़ प्रोफेशन. प्रोफेशन में क्या है, यू नीड अ स्पेशलाइज स्किल्स, ठीक है. जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि उस प्रोफेशन में क्या है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके फादर की कोई शॉप है, ठीक है, ये सॉरी आपके फादर अगर डॉक्टर हैं तो उनके एब्सेंस में आप वहाँ बैठ सकते हैं, नहीं. क्यों? क्योंकि प्रोफेशनल क्या होते हैं कि दैट यू हैव नीड अ स्पेशलाइज डिग्री, स्पेशलाइजेशन ऑफ सम नॉलेज. ओके, यू हैव गेट अ ट्रेनिंग ऑल्सो. ओके, तो इसलिए इसमें एंट्री क्या होती है, इसमें एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है. द फीचर्स आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. There is a practice of systematic body of knowledge which helps the professionals to gain specialized knowledge of that profession. ठीक है, तो उस प्रोफेशन में क्या होता है, आपको आप जिस चीज़ में भी आप कह सकते हैं कि यू आर एक्सपर्ट, तो उसमें आपको क्या होता है, आपके उसमें ट्रेनिंग्स होती हैं आपकी, एंड यू गेट अगेन अ स्पेशलाइज नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यस, अभी हमने डिस्कस किया कि इसमें एंट्री क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है. क्यों? बिकॉज इट्स तो एन एग्जामिनेशन और डिग्री, क्योंकि इसमें आपको एक प्रोफेशनली एग्जाम से क्लियर करने होते हैं और उस डिग्री को पास करना होता है. Next is presence of professional associations. Some associations are established and every professional has to get himself registered himself with his association before practicing that profession. Yes, like what practicing, जैसे मेडिकल में लोग MBBS करते हैं, BDS करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसके बाद तुरंत वो क्लिनिक पर बैठ सकते हैं, नहीं. उसके लिए क्या होगा, पहले उनको अपने जो उनकी एसोसिएशंस होती हैं, जैसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है, लॉयर्स के लिए क्या होती है, बार काउंसिल होते हैं, ठीक है, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए ICAI होता है, ठीक है. तो ये इनके क्या है, अपने एसोसिएशन से, जहाँ पे ये अपनी डिग्री को लेने के बाद ही अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं कि इन्होंने ये जो इस डिग्री के साथ पूरी एजुकेशन को लिया है, नाउ दे आर एक्सपर्ट, और तभी ये जो है ये अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं या दूसरों को अपने अंडर में काम करा सकते हैं. तो दैट इज कॉल्ड द रजिस्टर्ड हिमसेल्फ. Next is the service motive. The basic motive of every profession is to serve the clients with dedication. Okay, ये हमारा मेन मोटिव क्या होता है प्रोफेशन में, कि हम हमने जो भी स्किल्स को सीखा है, हम उसको अच्छे से अच्छे तरीके से उनको अपनी सर्विस डेडिकेट कर सकें. ओके, फॉर एग्जांपल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट गोल कैन बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके, यानी कि हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि वो प्रॉफिट को
अच्छे से अच्छे earn maximizationally, they can earn the profit. Okay, so they all are the management as a profession. So here the first part of this chapter, management, is done. Okay, in this unit I have told everything कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, कितने मार्क्स से कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा. एंड स्टिल यू हैव एनी डाउट, देन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, forward this to other students as well. Okay, and don't forget to like and subscribe my channel to keep updating the next video. Thank you so much.